Hi, good evening to all of you. So, an important session is there. We have 39th All India rank holder of Civil Services 2023. She was our classroom student in weekend batch, Deepthi Rohela, and she is also the highest scorer of geography optional this time, 323 marks. Clear? So she wants to interact with all of you, and importantly, you need to discuss your queries related to civil services preparation, because 39th rank makes almost a top scorer. And more importantly, how to score in optional, you can have a discussion with her. So she's there with us. I won't take much time, clear, because you have a class also. So she'll be coming and interacting with you. Just feel free to ask whatever you want to know about civil services preparation, clear, because the person who has gone through the process, she can tell you more about the recent trends in UPSC examination, which can be really productive for all of you. Clear? So I won't take much time. Thank you. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? क्या पढ़ रहे थे? ओके, नाइस. So I'm Deepthi Roila and I've secured All India rank 39, and this was my second attempt, and I have geography optional. So last year I missed the interview call by 18 marks, around 20 marks, and this time, I mean, gracefully I have secured this rank. So my idea would be to keep it as interactive as possible. I would share my strategy तीनों stages का in brief, and then we can take your doubts, and be feel free to ask any doubts, mental health related, content related, anything. I'm here for you. Okay. So shall I start? Okay, so first I talk about the prelim stage. I mean, it is the most dreadful stage, right? Because the elimination is quite high, and my key was always to focus on the static sources well. Because जो सभी लोग सही कर रहे हैं हम वो गलत नहीं कर सकते, राइट? तो उसकी बहुत ज़्यादा रिविजन, एन नंबर ऑफ रिविजन्स जितनी हो सके, एंड जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद उसकी के पी वाई क्यूज कर लिए, राइट? तो वी गेट द ट्रेंड कि इन्वायरमेंट में नेशनल पार्क आर रिवर भी पूछी जा रही है. तो जब हम अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा अलाइन करेंगे पी वाई क्यू की अप्रोच से, देन आई थिंक इट इज़ रियली हेल्पफुल. And this is about the preparation part. I mean, keep your static sources limited. उसकी number of revisions बहुत ज़्यादा. और current में भी कुछ topics ऐसे होते हैं, जैसे environment हो गया, science and tech हो गया, IR हो गया, which requires कि current पे you need to focus more. But polity and economy में there needs to be conceptual clarity, है ना? तो ये we need to be very smart कि कहाँ पे क्या time हम दे रहे हैं. So this is about the basic approach. Then I would say कि उस दिन का mindset matter करता है. I mean, let's imagine that day. Okay, 1 week before, we are all we have read everything, we have revised our answers. हमने अपने mistakes को भी एक जगह note down कर लिया, हमने अपना mindset बना लिया है. I think every battle is won or lost in the mind first. और वो last के 4-5 दिन ही decide करते हैं whether we'll make it or break it. Because everybody has read. I mean, if you're ट्रू टू द प्रोसेस एंड आपने एकदम ऑनेस्टी के साथ मेहनत करी है, तो यू नो दैट यू हैव डन. बट अगर आप उस समय परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दैट इज आई मीन दैट विल गिव यू रियली हाई अमाउंट ऑफ गिल्ट, राइट? सो आई वॉज ऑलवेज फियरफुल कि मुझे वो गिल्ट नहीं चाहिए कि इतना पढ़ लिया और परफॉर्म नहीं किया. तो उस जो लास्ट वीक में आई वॉज माइंडफुल कि इतना ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो तो भी चलेगा, है ना? 5 to 6 hours पढ़ाई हो गई, क्वालिटी, दैट इज डन. और ज़्यादा पी वाई क्यूज पे फोकस कर लिए ताकि एक अप्रोच समझ आ जाए. दैट टू जो ड्यूरेशन है 9:30 वाली एंड 2:30 से 4:30. सो दिस वॉज इट. अब एक रात पहले कल एग्जाम है. नाउ व्हाट विल यू से टू योर सेल्फ? आई मीन, आई हैड द प्लान कि मैं कल ये बोलने वाली हूँ, राइट? अफर्मेशंस, आप सुबह जा रहे हैं, आप फॉर्म कर लीजिए, आप ये सब बोलने वाले हैं. थोड़ी हॉबीज प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा अपने आप को मूव कर लिया, बिकॉज मूवमेंट ऑल्सो हेल्प, राइट? सो दिस इज 1 day बिफोर. अब स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर आप सोएंगे नहीं, ओवर थिंक करते रहेंगे तो क्या बात. सो 22 वाले अटेम्प्ट में आई कुडंट स्लीप बिकॉज वो मेरा पहला प्रीलिम्स था, एंड एवरीबडी लाइक प्रीलिम्स अनसर्टेन, ट्रेंड चेंज, ऑल दैट. बट मेरे से सोया ही नहीं जा रहा था, तो व्हाट डू आई डू? So I followed a strategy called non-sleep deep rest. It is propounded by Andrew Huberman, which is a it is sort of yoga nidra, wherein you can listen to it
इफ योर थॉट्स आर आई मीन you're juggled between your thoughts, you can listen, और आपको अच्छे कम समय में अच्छी रेस्ट मिल जाएगा, ताकि आप अगले दिन अगर आपकी नींद के नंबर ऑफ आवर्स भी कम हैं तो फिर भी आप फोकस्ड रहेंगे. सो दैट आई फॉलोड. और अब सुबह हो गई है, अब हमें पेपर 1 देना है. नाउ आई हैड प्लान कि व्हाट विल आई ईट, वो भी सिमुलेशन करके कि रोटी खाने से बहुत ज़्यादा नींद आती है तो आई स्किप दैट, कुछ पोहा या ऐसा कुछ चावल टाइप लाइट ले लिया. देन जाने से थोड़ी देर पहले आई वुड हैव चाय. तो इतनी छोटी छोटी डिटेल्स भी, मतलब सिर्फ पढ़ने से तो एग्जाम नहीं क्लियर होगा, यू कैन टेक दैट. पढ़ाई भी है, छोटी छोटी डिटेल्स भी है, वो भी पर्सनलाइज खुद की. अब आपको लगता है आपको रोटी खानी है तो फिर आप मेरा नहीं सुनिए, आप अपना पर्सनलाइज देखिए. एंड थर्ड आई वुड से ऑब्वियसली लक. तो मैंने एक क्वेश्चन, इफ आई कैन गिव एन एग्जांपल, कुछ दिनों पहले टेलीग्राम चैनल पे देयर वाज थिंग कि किटकैट से एक आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी कि नेशनल पार्क ये वाला आ गया, एंड सो किटकैट के सब रैपर्स एवरीबडी वाज शेयरिंग कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. सो देयर वाज अ क्लिप, उसमें लिखा था गंडीकोटा कैनन इन आंध्र प्रदेश. सो एवरीबडी रेड, बट ऐसे ही मैंने रैंडमली सर्च कर लिया कि कौन सी रिवर है, बिकॉज पीवाईक्यू से पता चल गया था कि रिवर पे तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आई जस्ट रैंडमली सर्च. और 22 के प्रीलिम्स में दैट वाज द क्वेश्चन, गंडीकोटा कैनन विच रिवर, आई न्यू पेन्ना रिवर, और वो मैंने पढ़ा ही नहीं था, एकदम रैंडम क्यूरियोसिटी. सो ऐसा लक भी काम चलता है. तो आई मीन एवरीथिंग वर्क, आई मीन कोई एक फैक्टर नहीं है कि पढ़ाई ही करने से होगा या एकदम ही आप डिटेल्स पे ही चले जाएं तो होगा. आई थिंक एवरीथिंग, सबका अपना प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपके रिजल्ट में. सो दैट वॉज इट. अब पेपर 1 दे के आए, अब 3 आवर का गैप है. सबसे पहले तो 3 आवर का गैप ही क्यूर किया, 2 घंटे 1 घंटे का भी हो सकता था, विच मीन्स कि मेंटल गेम होने वाला है. ये आपने दे दिया है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सर्च करने लगे कि इसका आंसर क्या है, आप ही लॉस में जा रहे हैं. पहला आपने सर्च किया और सही आया, फिर तो क्लियर ही हो रहा है, अब बस मेंस लिखना है और सिलेक्शन पक्का. सेकेंड, अगर आपका गलत हो गया तब क्या, कि ये तो पढ़ा हुआ गलत हो गया. होते हैं ऐसे क्वेश्चन भी पढ़े हुए गलत, और वो बेसिक भी होते हैं, तो कोई बात नहीं, मेरे भी हुए हैं कोई क्वेश्चन गलत जो बेसिक सोर्सेज से आए थे, बट वो ऐसा होता है कि 1 या 2, उसके चक्कर में मैंने करंट का अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया था आईआर वगैरह में, तो वो क्वेश्चन सही हो गया. बट इट हैपन्स, आई मीन नथिंग टू कि हमसे ही गलत हो रहे हैं, एवरीथिंग, आई मीन सबके साथ होता है ये. देन वो 3 आवर का गैप्स है, उसमें व्हाट विल यू डू, यू हैव वाटर, आप अच्छे से खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे. और मेरी अप्रोच थी कि मतलब ये बहुत ही ऐसा लगेगा कि चाइल्डिश है, बट मैंने सम सॉल्व करे थे. एक पेपर में मैंने एक दिन पहले लिख लिया था कि 22 into 35, 324 into 127, ऐसे रैंडमली, क्योंकि आई थिंक नीरज चोपड़ा है सेड दिस कि उनका इवेंट होता है 1 घंटे का, उससे पहले वो 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. वाई? बिकॉज हम ग्रूव में आ जाते हैं अपने करने की. हमारा अगर एग्जाम में 1-2 मिनट भी सेव हो गया, 1-2 मिनट सेव, एंड आई थिंक 2 क्वेश्चन कर लिया आपने, 2 क्वेश्चन इन CSAT मीन 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स तो इट्स ह्यूज इन प्रीलिम्स. तो गेट इन द ग्रूव, पहले से आप कुछ सम सॉल्व करते रहिए ताकि आपका दिमाग ओवर थिंकिंग जोन में ना जाए, कुछ ना कुछ थोड़ी देर पहले से. और अब आप उस रूम में हैं, आप थके हुए हैं, आपने जीएस भी दिया हुआ है, आपने रेस्ट भी कर लिया, थोड़ी नींद भी आ रही है, आपने चाय भी पी ली, बट अब आपको परफॉर्म करना है CSAT में. सो हेड डाउन एंड जस्ट रिलैक्स. जब पेपर आएगा यू हैव सॉल्व द सम्स एंड यू जस्ट हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट, दैट्स इट. बाकी कुछ भूल जाना है कि ये क्वेश्चन गलत था या ये कहाँ से आ गए, तो पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया, राइट. सो 23 वाले अटेम्प्ट में एज यू नो पेयर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए थे. सो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग था. वो भी स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, क्योंकि पहले वीक बहुत था, तो मुझे लगा ये इतना तो ये इतना कैसे, आई मीन हाउ डू आई हैंडल हिस्ट्री, मेरे से तो याद ही नहीं होता है, इतनी सारी डेट्स है, और अब ये एक तो फॉर्म पे पूछ ही नहीं रहे हैं, टेम्पल के साथ रिवर मिक्स कर दिया, यानी अब ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी मिक्स कर रहे हैं. तो अगर मैंने रिवर पढ़ा है तो मुझे है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बट ये तो हिस्ट्री का है और हिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं, तो और गिल्ट कि अपना ही सब्जेक्ट और क्वेश्चन गलत हो गया. तो हिस्ट्री से मेरे को बड़ा डर लगता था, तो वो मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली कि इसको तो आई हैव टेकन इट एज अ चैलेंज. तो अब हिस्ट्री स्ट्रांग हो गई, तो अब मेरे दोनों ही पेपर में शुरुआती के क्वेश्चंस हिस्ट्री के थे, तो मेरे को तो काफ़ी इजी लगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है इसको. तो मुझे लगा इतना इजी पेपर है 23 का, ये तो क्लियर ही हो रहा है. आगे जाके देखा पेयर क्वेश्चन, चलो 1-2 क्वेश्चन पेयर के होंगे, पूरा ही पेपर पेयर के क्वेश्चन से भरा हुआ है. तो यू सी द मेंटल स्टेज हमारी कैसी होती है कि पैटर्न बदल गया या हमारे साथ अनफेयर हो रही है चीज़ें, ये सब. इफ़ यू हैव दीज नेगेटिव थॉट्स ना, तो उस समय पे, क्योंकि आई मीन देयर आर पीपल हु आर वेरी डेस्परेट, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए दिस लॉट ऑफ डेस्परेशन एंड एक एजिटेशन है लोगों में, दैट यू नो पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर कितने अटेम्प्ट्स तक. तो इफ़ यू आर थिंकिंग और आप उस जोन में चले गए कि इसके बाद हम एनालाइज कैसे करेंगे, तो डोंट गो देयर, है ना. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन अगर हम घर पे होते तो हम सॉल्व कर लेते, राइट. जो लास्ट में हमें 1-2 चाहिए कि 50-50 एलिमिनेट हो गया,
और आगे हम सोच नहीं पा रहे हो कि हम पता नहीं कहाँ चले गए हैं अपने थॉट्स में। तो उसी समय आई वुड से कि अगर मैं घर पे होती तो कैसे सॉल्व करती कि अच्छा यार कॉमन सेंस लगानी है, ये नेशनल पार्क है तो ये तो इधर नहीं होगा तो ये कट जाएगा, तो ये आंसर आ गया। अभी हुआ कैसे, थोड़ा सा हम चिल हो गए उस क्वेश्चन को लेके। शुरू में वी वर वेरी फोकस, जब लास्ट के कुछ समय जिसमें हमको क्वेश्चन यू हैव टू मेक कि मेरे इतने क्वेश्चन तो कंप्लीट हुए, तो उसके लिए थोड़ा सा चिल रिलैक्स माइंडसेट लास्ट के मिनट में कैन रियली हेल्प यू। और जब तक आपका पेपर नहीं ले रहे हैं वो लोग तब तक आपके पास टाइम है ना। तो हर एक मिनट आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट के कुछ 5 मिनट में 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए इसी चक्कर में कि थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं हम, ठीक है बहुत हो गया, अब एकदम ऐसे करते हैं कि हम घर पे हैं तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस डेवलप हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो दैट वॉज रियली हेल्पफुल। एंड अब CSAT हो चुका है, अब यू नेवर नो पता नहीं कैसा हुआ है। आई मीन पेरेंट्स वर देयर तो दे वर आस्किंग, बट मैंने पहले से ही प्लान किया था कि उस दिन शाम को आलू टिक्की और बास्किन रॉबिन्स। तो मैं इतना लंबा क्यों सोचूं कि मेंस लिखना है, फिर रैंक आएगी, फिर सिलेक्शन। मैंने उसी दिन को बढ़िया बना लिया था कि अगर मुझे बास्किन रॉबिन्स और आलू टिक्की अच्छे से खाना है पीस में शांति से, तो मेरे को पेपर में परफॉर्म करना होगा। तो मेरा मोटिवेशन था खाने पे, आपको कुछ भी हो सकता है, डांसिंग, मीटिंग समबडी, तो ऐसे आप थोड़ा कुछ अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं, राइट। तो मैंने कहा यार जो होगा देख लेंगे, अभी तो मैंने अच्छा किया, मतलब मैंने पेपर में बिल्कुल वो नहीं हो गई कि ओवर थिंकिंग या कुछ भी। पीपल हैव गिवन अप इन द मिडल ऑफ द CSAT पेपर कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, somebody said कि कैसे पेपर आ गया, सो उन्होंने पेपर डाउन रख दिया, वो चले गए। आई वॉज लाइक ये आई मीन दिस इज वेरी सैड टू सी कि आपका पूरा एक ईयर इज डिपेंडेंट ऑन दैट डे, तो यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट। तो शाम को ही प्लान कर लो कि शाम को क्या करेंगे हम, जो आई मीन जो भी ट्रीट योर सेल्फ वेल। सो दिस वॉज अबाउट प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स के आपके कुछ डाउट्स हो तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एनीबडी? यस जी। तो अभी मुझे लगता है कभी भी स्कोर्स आते हैं मेरे टेस्ट में या फिर नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि कैसे इसको डील करें। बिल्कुल वैलिड सवाल है, बट आपको ये देखना होगा कि मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं। मेरे मैं बताऊं लास्ट के टाइम में 70-80, कभी कभी रैंडमली 90 टच करता था। बट टेस्ट के क्वेश्चंस भी, एक अगर मॉक टेस्ट पूरा करंट बेस्ड है तो ऐसा तो नहीं आने वाला है ना मेंस में, स्टैटिक भी होंगे, कुछ इजी भी होंगे, कुछ टफ भी होंगे। तो वो आप खुद जज कीजिए कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। और अगर आपने ये बहुत इस समय बहुत होता है कि अगले साल देख लेंगे, इस साल तो हमने पढ़ा है बट कोई बात नहीं ना, अगले साल आई थिंक ये बहुत लास्ट ईयर फिर ये स्टोरी रिपीट होगी। तो अगर आपको पता है ना कि आपने पढ़ाई करी है, और हम सबको पता होता है, ये मानते हैं हम, अगर हमने बिल्कुल ट्रुथफुली पढ़ाई करी है तो सबको पता है कि हमने यार पढ़ाई करी है, कि हमारी जोन ही ऐसा है, मतलब कोई क्यों नहीं ओवर थिंक करेगा। तो हम इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ये माइंड ऐसा सोचता है कि सोचने दो, बट हमने इतने सारे मंथ्स जो अपनी मेहनत करी है उस पर थोड़ा ट्रस्ट करें, राइट। सो आई थिंक थोड़ा सा ट्रस्ट और थोड़ा सा रैशनल भी होके, आई मीन एम आई गेटिंग वेरी लो स्कोर्स, या पेपर का पैटर्न कैसा था, क्यों क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, यू स्टिल हैव टाइम टू रेक्टिफाई दैट। एंड आई वुड से दैट CSAT पे आई मीन रियली यू नीड टू फोकस अ लॉट। अगर लास्ट तक स्कोर नहीं आते 10 दिन पहले तक, तब भी यही सोचना चाहिए देना चाहिए तो ये नहीं। अगर PYQ सॉल्व हो रहे हैं मॉक टेस्ट में फिर भी कम आ रहे हैं तो आई वुड से दैट गिव इट, क्योंकि एंड इसका रीज़न है बिकॉज आप जो 3 महीने होंगे आपके पास, उसमें जब आप क्लियर कर जाएंगे, और अगर आप मेंस रेडी भी नहीं हैं, सपोज आई मीन इफ़ यू आर मेंस रेडी वेरी गुड, इफ़ यू आर नॉट, जो 3 महीने में पढ़ाई होगी ना वो पूरे साल की हो जाएगी, राइट। तो उस इंटेंसिटी से आप पढ़ते हैं। सो आई वुड से कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर कॉल, आई मीन यू नो योर सेल्फ बेस्ट। या यस। सो करंट अफेयर का फिल्म से ट्रिकी पार्ट, उसमें भी हमें सेग्रीगेट करना होगा। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक IR, उसमें करंट को यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस, यू हैव टू रीड मैगजीन्स, कंपाइलेशन, जो भी आप सोर्स रेफर करते हैं। एंड सेकेंडली पॉलिटी इकोनॉमी के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने कोई कंपाइलेशन कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि आने ही नहीं है वहाँ से क्वेश्चन, और आएगा भी तो इतना रैंडम होगा कि कंपाइलेशन में नहीं होगा। तो टाइम मेरा काफ़ी यूजफुल है। अगर मैं हिस्ट्री की NCERT पढ़ लूँ, दैट वुड गिव मी मोर फ्रूट्स दैन रीडिंग अ कंपाइलेशन। सो इट वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। और अभी तो अगर आप दे रहे हैं तो अभी तो न्यूज़पेपर को यू कैन स्किप फॉर अ मंथ। अच्छा ओके या ओके। सो इन्वायरमेंट में 3 कंपोनेंट्स, पहला तो स्टैटिक की नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट इज इकोसिस्टम, ये सब आई फॉलोड फ्रॉम NCERT।
राइट। एनसीईआरटी आई थिंक 11th और 12th की, बायोलॉजी की है, एक केमिस्ट्री की है फॉर एनवायरमेंट पोल्यूशन। उससे आपको एकदम बेसिक आइडिया हो जाएगा कि पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, उसके पीवाईक्यू के साथ उसको पढ़ना है, स्टैटिक कंपोनेंट। सेकंड इज करंट लिंकेजेस, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना, तो करंट कंपोनेंट आप अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर रहेगा। आई मीन मेरा जो टेक अवे है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड अटेम्प्ट इज न्यूज़पेपर रीडिंग। लास्ट ईयर मैंने बोला 18 मार्क्स से आई वाज शॉर्ट ऑफ द इंटरव्यू कॉल, सो आई नो आई एम वेरी क्लोज, बट वो जो गैप होता है ना मार्क्स का ब्रिज करना, दैट आई थिंक इन माई केस इट हैपेंड थ्रू न्यूज़पेपर एंड लिंकिंग। इसमें आपको एग्जांपल दूं कि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक भी हो गया ये, जैसे मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट था, राइट। हम अगर इसको न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो हाउ डिड आई रीड, सिलेबस के वर्ड्स के हिसाब से आई हैव मेड टैब्स इन वन नोट, GS1 सारे टॉपिक, GS2 सारे टॉपिक, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आई हैव रेड, काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा था, तो ये आप भूल ही नहीं सकते अगर आप न्यूज़पेपर रीड करें डेली, तो मतलब ये एग्जाम्पल आपके आंसर शीट में आएगा ही आएगा। बट हाउ डू आई फ्रेम माई माइंड, तो न्यूज़ पढ़ी, थोड़ा देर रुक के कि किस टैब में ये फिट हो रहा है सिलेबस के, ये वुमेन इश्यूज़ में फिट हो रहा है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में फिट हो रहा है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में फिट हो रहा है। तो अब मेरी इंटरलिंकिंग कितनी अच्छी बन गई। अगर आप सिर्फ मैगजीन पढ़ेंगे तो वो लिंक नहीं बन पाएगा, उन्होंने ये दिया हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी में टॉपिक, यू हैव रेड इट। तो इन्वायरमेंट में अगर आपको इशू आ रहे हैं तो स्टार्ट स्मॉल, आई मीन थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ेंगे तो यूजफुल होगा। फर्स्ट स्टैटिक, सेकंड करंट, थर्ड आई वुड से मैपिंग। मैपिंग से आई थिंक अगर 10-15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अराउंड 3-4 मैपिंग से रिलेटेड आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं लिंक करके, इट इज़ अबाउट रिवर, कोई नेशनल पार्क, कोई स्पीशीज एंड ऑल दैट। सो आई वुड से दैट इसमें यू नीड टू, आई मीन व्हाट आई फॉलोड दैट आई मेड माई ओन नोट्स, और मेरे पास ज्योग्राफी था तो मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग थे, और जो क्वेश्चंस पे आ रहे थे जैसे मार्सुपियल्स, कुछ लोगों को पता ही नहीं था मार्सुपियल क्या होता है, तो आई वुड से दैट इसके लिए GC लॉन्ग में देयर इज वन कंपोनेंट, आई डिड नॉट रेड इट बिकॉज मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो दैट्स माई साइड। आई मीन अच्छे से अगर आपको आई मीन यू गॉट द आंसर वेल, आई थिंक या दैट्स इट अबाउट प्रीलिम्स। We have to guess what's matter sometimes. What was your approach in eliminating like some options? In some questions you are confident that one option is correct and other option. What was your approach that in question which you were not very confident? तो बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें हमें रिस्क लेना पड़ेगा, उसमें भी डिपेंड करते हैं कि किस सब्जेक्ट पे हमें रिस्क लेना है। सो ये आएगा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस से। पहले चलते हैं, हमने टेस्ट सीरीज दिए, अगर हमने इन्वायरमेंट में तुक्के मारे हैं और वो चल गया, मतलब हम मेन एग्जामिनेशन में भी वी कैन बी श्योर ऑफ, ये आई एम गिविंग आइडिया कि 4-5 टेस्ट देके आपने एनालाइज कर लिया कि इन्वायरमेंट में मेरे गेस्ट वर्क कर रहे हैं, तो मेन एग्जामिनेशन में आई वुड डू दैट। मेरे साथ ये हिस्ट्री में होता था, अगर मैं हिस्ट्री में आई हैव रेड सो मच कि मेरा इंटरलिंकिंग बना हुआ था, तो वो क्वेश्चन सही होते थे, तो उस सब्जेक्ट में विल टेक गेस। अब इकोनॉमी में अगर नहीं हो रहा तो आई विल नॉट टच इट। तो ये भी सब्जेक्ट वाइज इट वेरीज। और कुछ ऐसे होते हैं जो अगर आप थोड़ा व्हाट डू यू कॉल इट, एकदम ही रैंडम आ गया, मतलब कुछ IRA क्वेश्चंस थे अब की बार जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन ने पूछी हुई थी, तो इट इज़ बेटर टू स्किप। एंड थर्डली आई वुड से डिपेंड्स ऑन हु यू आर। जैसे मेरी एक्यूरेसी वो स्ट्रॉन्ग, तो मैंने 69-68 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे अब की बारी में, एंड माई स्कोर इज 96। कुछ पीपल रिक्वायर टू हैव द स्कोर, आई मीन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90+। सो अगेन नो योर सेल्फ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आपकी एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग है या रिस्क टेकिंग बढ़िया है, रिस्क टेकिंग में भी कौन से सब्जेक्ट में रिस्क लेना है, तो थोड़ा उसको और ब्रेक डाउन कर दिया पार्ट्स में। या यस, आर वी डन प्रीलिम्स के लिए? ओके, CSAT के लिए मेरा फोकस था PYQs टॉपिक वाइज। आई थिंक देयर इज वन IPS ऑफिसर घनश्याम गौतम सर, उनका एक चैनल है, उन्होंने टॉपिक वाइज सारे CSAT के PYQs दे हैव कंपाइल्ड इन अ PDF। सो आई हैव टेकन द PDF, आई हैव सॉल्व्ड, और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया, बट दे कैन गो वन लेवल हायर इन द नेक्स्ट ईयर। सो देयर इज अ बुक बाय अरिहंत पब्लिकेशन जिसमें थोड़े ज़्यादा लेवल के हाई क्वेश्चंस है, बट हमें एक लेवल हाई जाना है। से स्पीड डिस्टेंस टाइम में देव आज समथिंग, बट इसका थोड़ा और वेरिएशन इन क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया, तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट आई वुड डू मॉक टेस्ट कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड आई अटेम्प्ट, क्योंकि सारे तो करने नहीं है। 50 के अराउंड पीपल से, बट मेरे जो क्वेश्चन हुए थे अब की बार इट वॉज 40, तो थोड़ा ये देखना कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। थर्ड आई वुड से नो योर स्ट्रेंथ, आप कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे हैं या आप मैथ्स में रीजनिंग में अच्छे हैं, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। PYQ देखिए आप कितने क्वेश्चन किसके सही कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं।
राइट. सो इट डिपेंड्स ऑन हु यू आर. अगेन पूरी जर्नी का जो सार है वो यही है कि आप कौन है. आई मीन सिलेबस सब पढ़ते हैं, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट हाउ इट अलाइंस विद यू एंड नेवर बी व्हाट यू कॉल स्टिग्मेटाइज. जैसे मेरे से एक सब्जेक्ट आई कैन नॉट रीड इट फॉर स्ट्रेच, इतना लंबा मेरे से होती नहीं थी पढ़ाई. अगर मैं कर भी रही हूँ तो आई नो कि आई एम फूलिंग माई सेल्फ, क्योंकि लास्ट के घंटों में प्रोडक्टिविटी इतनी होती नहीं थी. तो मेरी अप्रोच थी कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं 3 सब्जेक्ट एक साथ लेती थी. राइट. अब सम पीपल माइट से कि ये तो कुछ भी फोकस, ये तो कुछ भी पढ़ाई नहीं है, सब कुछ ही आप पढ़ रहे हो, बट वो मेरे लिए वर्क किया एंड आई वॉज नॉट अशेम्ड कि ये मेरी ही यूनिक स्ट्रैटेजी है, इट माइट नॉट वर्क या क्या, बट मेरे लिए वर्क किया ना. सो आई स्टूड अप टू दैट. या यस. How did you improve your history? This is the various and maybe just PowerPoint. Yeah. So history के लिए initially I said I was very scared. So I referred only one book. और उसी को इतने अच्छे से करना है कि उसमें से कोई question आ जाए, so I will not read. I mean I'll not have the guilt. So उसके लिए I referred तमिलनाडु की book. So what funny thing what happened with me कि people have said कि तमिलनाडु की old NCERT. आई डिड नॉट नो कि ओल्ड ही करनी है. मैंने सर्च किया यूट्यूब, आई मीन गूगल पे, तमिलनाडु न्यू NCERT, और वो आ गई और मैंने पढ़ भी ली. और अभी मुझे पता चल रहा है कि पीपल रेफर ओल्ड NCERT, बट न्यू से आई मीन आई वुड वाउच ऑन दैट कि दैट इज अ रियली गुड बुक. और वो एक ही सोर्स है, अगर उसी को हम बार बार कर लेना तो हमारे लिंकिंग भी बन जाएंगे. अगर कोई डायरेक्टली भी नहीं आ रहा है, वी नो कि हमने इतना पढ़ा है तो हम लिंक भी बना लेंगे. सो एकदम सोर्स लिमिटेड करना, उसी की रिविजन करना. रिविजन कैसे, जैसे हिस्ट्री में तो रिक्वायर्स मेमोरी ऑब्वियसली. तो अगर मैंने एक चीज़ आज पढ़ी है, 3 आवर्स लगा के एक टॉपिक पढ़ लिया, नेक्स्ट डे मैं फिर रीड करूँगी, उसको हाफ टाइम लगेगा, 1.5 आवर्स लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे. अगले दिन फिर उसी को रीड करना तो 1 घंटा लगेगा, प्लस बाकी ऐड हो रहा है. से चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिए कि आज चैप्टर 1, नेक्स्ट डे चैप्टर 1 की रिविजन प्लस चैप्टर 2, अगले दिन चैप्टर 1 2 रिविजन, चैप्टर 3. तो ऐसे 15 दिन में आपकी हिस्ट्री हो जाएगी. बट ये थोड़ा वो लग रहा है एफर्ट टेकिंग. जब हम फिर से चैप्टर 1 पढ़ेंगे, हमें लग रहा था यार कल ही तो पढ़ा था, बट दैट इज द की. आप थोड़ा अपने आप को एक्टिव रिकॉल कीजिए, बुक रख दीजिए कि अच्छा इधर क्या था ये. दैट्स इट. Okay, next stage, I think mains is the main stage, and if I share my marks, in essay my score is 110, GS1 में 100, GS3 96, GS4 125, and optional में 323. So I'll go paper wise, and essay में I would say the thing is to be understand the topic well, right? And essay में the key is कि introduction और conclusion बहुत solid होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन आप स्टोरी से स्टार्ट कीजिए, और कंक्लूजन में मेरा आपकी बार अप्रोच था कि मैंने कुछ वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स पहले से ही आई हैव प्रिपेयर्ड कि डैश एंड डैश गो हैंड इन हैंड, डैश वी स्टैंड, कि करेज एंड परसिवियरेंस गो हैंड इन हैंड, ओनली देन यू कैन स्टैंड इन द फेस. मतलब कुछ भी ऐसे करके कि कुछ भी टॉपिक आएगा तो आई कैन फिट हेयर, बिकॉज पास्ट ईयर के टॉपर से बताया था कि हमने पोयम ऐसे ही बना दी थी. सो मैंने कुछ अपने राइमिंग वर्ड्स ले लिए, कुछ भी टॉपिक आए फिट देयर. दूसरा आई वुड से कि थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बनाना. हाउ डू वी मेक इंटरेस्टिंग? बीच में सब हेडिंग्स लिखनी, जैसे कि फ्रॉम ट्रायल ट्रिबुलेशन टू ग्लोरी एंड समथिंग, सो राइमिंग वर्ड्स हो गए. देन फ्रॉम जीरो टू जेरोधा, सो देयर वाज अ पर्सन निखिल कामत, तो आई हैव टेकन हिज एग्जाम्पल इन द एजुकेशन वाला जो ऐसे था कि एजुकेशन वो है जो हम स्कूल में सब भूल गए, वो होता है. तो ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल क्योंकि ही हैज़ नॉट टेकन एनी कॉलेज या जो भी उनकी स्टोरी थी. सो आई रिटन फ्रॉम जीरो टू जेरोधा, तो अभी थोड़ा कैची लग रहा है पढ़ने में भी, बिकॉज ऐसे इतना लंबा टेक्स्ट होता है, वी हैव टू ब्रेक द मोनोटनी समवेयर. सो यूजिंग सब हेडिंग्स वर्क, एंड इंट्रो और कंक्लूजन को वेरी सॉलिड. ठीक है. देन GS1 में आई वुड से कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी है. सोसाइटी में यू हैव टू बी एनालिटिकल, एंड यू हैव टू राइट पूरा सेंटेंस कि नॉट जस्ट इक्वालिटी, that this discrimination will lead to equality that will hamper the sense of self. ऐसे करके थोड़ा एनालिटिकल. ज्योग्राफी में हम सिंपल लिख सकते हैं कि दिस माउंटेन दिस हैपेंड, जैसे फियोर्ड्स वाला क्वेश्चन था, उसमें वी कांट बी एनालिटिकल, उसमें जो पूछा है वो लिखना है. और ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है कि आप प्लेसेस के एग्जाम्पल दें. तो मुझे पता था फियोर्ड्स ऊपर कहीं वेस्टर्न यूरोप में होता है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड. मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा कभी, बट वहाँ होता ही होगा. तो ऐसे मैंने प्लेस के एग्जाम्पल दे दिए. अब समबडी हु इज चेकिंग, उन्हें लगेगा कि वाह ये तो बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड आंसर है, बट ऐसा नहीं था. और ज्योग्राफी में अनदर की इज टू ड्रॉ डायग्राम्स, मैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लेसेस हो गया. देन इज हिस्ट्री की प्रिपरेशन जो हम प्रीलिम्स के लिए करते हैं दैट विल सफाइस, बट इसमें वी हैव टू गिव स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स. पॉइंट जनरली होंगे, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर का कुछ क्वेश्चन था, इसमें इफ आई राइट जनरल पॉइंट्स कि वी गेट टू नो कि व्हाट इज द मटेरियल बीइंग यूज्ड, तो उससे माइनिंग का पता चलता है.
हाउ इज द स्पेस डिविजन, कि अगर डांस के लिए अलग था नाट्य दर्पण है, विच मीन्स की कल्चरल डेवलपमेंट हो रही थी. दीज आर द जनरल पॉइंट्स वी राइट, बट इट विल नॉट फेच यू मार्क्स इन आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री वाले क्वेश्चन. इसमें वी हैव टू गिव द एग्जाम्पल कि बृहदेश्वर टेम्पल में दिस हैपेंड. तो व्हाट माय हैक वाज कि जब जीएस का 1 का पेपर आया तो 5 मिनट्स हमें रिवीजन के लिए मिलते हैं, और मुझे पता था कि हिस्ट्री में एकदम से एग्जाम्पल नहीं आएंगे मेरे दिमाग में, मैंने राइटिंग, तो उस समय स्पेसिफिक हम मिस कर सकते हैं. एनालिटिकल तो वील राइट, तो पहले ही मैंने उसको मार्क कर लिया कि हिस्ट्री के क्वेश्चन फर्स्ट मिला. हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैंने जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स है 2-3 वो पहले लिख लिए, तो इससे काम आसान हो गया. जब आएगा पेपर तो आई राइट एनालिटिकल पॉइंट्स और उसमें से देख लूंगी कि ये एग्जाम्पल था. सो दिस इज अबाउट GS1. अभी तक किसी को डाउट एसए या GS1 में? नो, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. GS2. अब GS2 में द की इज अगेन टू बी एनालिटिकल, और हर सब्जेक्ट की एक अलग स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, राइट. पॉलिटी या गवर्नेंस में इफ यू राइट इफेक्टिव गवर्नेंस, DOPT मेंशन दिस, नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, ऐसे कीवर्ड लिख के और फिर अपना पॉइंट देना. दैट विल, आई मीन एग्जामिनर विल गेट टू नो कि आपको पता है, यू नो द फील ऑफ द सब्जेक्ट. तो पॉलिटी और गवर्नेंस में आई फॉलोड की कुछ एक कीवर्ड की लिस्ट बना ली अलग से, एक आर्टिकल की लिस्ट बना ली, कुछ कमिटी की लिस्ट बना ली. दैट विल, कमिटी एंड कीवर्ड्स विल बी माय कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में जो पूछा है वो, और जो क्वेश्चन है दैट विल बी इन द बॉडी पार्ट. देन आई वुड से इज IR वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड. तो मेरा जो आंसर से इट हैज लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, लॉट ऑफ पर्सन्स, आई मीन जो उन्होंने फेमस कहा है, और वो भी 2-3 ही है. इफ आई गिव एग्जाम्पल, देयर इज अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड मिनिमाइजिंग द हार्म, मैक्सिमाइजिंग द गेन्स. अब दिस इज बाय सम आई थिंक ex NSA मेंबर. सो दिस आई यूज्ड इन IR. मुझे पता है कि ये कंक्लूजन तो सेट है. एक PM मोदी ने सम 5S कुछ बोला है, संवाद, सुरक्षा, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट 5S स्ट्रैटेजी करके कुछ था. तो एक तो इंस्टीट्यूशन वाला क्वेश्चन आता है IR में, एक करंट से कुछ आता है, 2 कंट्री से क्वेश्चन आते हैं. तो मेरे दिमाग में था कि कुछ भी आए, ये तो कहीं ना कहीं फिट हो रहा है ना, तो पहले से ही फ्रेमवर्क बना लेना कि ये कंक्लूजन आएगा तो ये डन है. मिनी मैक्सिंग मैंने GS2 में यूज़ किया, GS4 में भी यूज़ किया, GS3 में भी इवन यूज़ किया. तो अगर आप थोड़ा लिमिटेड रखें ना अपने सोर्सेज को, कि और कहीं कहीं आप इनको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, थिंक, क्योंकि ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. तो कुछ ही लिमिटेड सोर्सेज, उसी को हम कहाँ फिट कर दें. ओके, एंड IR में दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कोट पीपल इन कंक्लूजन, यू हैव टू मेक द मैप, और जो भी एनालिसिस पूछा है इट हैज़ टू बी कॉम्प्रिहेंसिव. इसमें भी यू कैन मेक फ्रेमवर्क्स कि माई फ्रेमवर्क वॉज अराउंड से डिप्सेप्ट, डिफेंस में क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशन क्या है, पॉलिसी क्या है, कल्चर, इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड टेक्नोलॉजी. सो इस फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क है. अब कोई भी कंट्री में यही सब लिखने वाली हूँ. इंडिया US आ गया, तो अब इंडिया US आ गया, वी नो कि टेक्नोलॉजी कुछ आएगा ही आएगा. सो करंट से वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ ISET. तो न्यूज़पेपर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, GS2 में. एंड दिस इज अबाउट GS2. नाउ GS3. अब GS3 में क्या हो रहा है कि मार्क्स आर नॉट, आई मीन पीपल आर नॉट गेटिंग दैट हाई स्कोर, बट इट इज अ वेरी, आई मीन पीपल आर ऑल्सो गेटिंग स्कोर. सो लास्ट ईयर आई सर्च्ड, आई मीन subject wise who are the topper. So GS3 में there is one girl who have gotten the score of 100, which means she has cracked the code for GS3. तो मैंने उनकी टॉपर कॉपीज रेफर करी, how is she writing. Then I understood कि GS3 requires lot of data, example maps, कुछ कीवर्ड स्पेसिफिकली जो उस पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स है. सो दैट आई फोकस्ड, एंड द बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम GS3 इज टू आइडेंटिफाई द सब पार्ट्स. इफ आई एम रिकॉलिंग करेक्टली, दिस ईयर के पेपर में 10 मार्कर क्वेश्चन में देयर वर 5 पार्ट्स. इफ यू हैव मीन रिटन डाउन कि दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2nd पार्ट, दिस इज 3rd. अब people, what I mean, that's my observation, that why people don't get score in GS3, that they write on a topic, say AI and healthcare पे topic है, but उन्होंने कुछ components पूछे होंगे, do you think. अब do you think में yes we think, no we don't think. Now when we say no we don't think, उसे कुछ steps लिख दे, then conclusion. So it is very layered. It is not just what you think. I mean you doesn't matter, to be honest. You have to write क्या question के according are you answering or not, right. So GS3 में identifying the sub parts is really important. Then yes, IR and security को read together, because neighboring countries का issue है, और this golden crescent, golden triangle, ये security में हम पढ़ते हैं, तो read them together, आपकी linkages will be really solid. Then about GS4, I think ये थोड़ा सा different paper है ना. तो इसमें theory part and the case study part. तो theory part is equally important as case study. तो theory की बात करते हैं पहले. I refer to the red book by Forum. Theory part के लिए static content was prepared. Second was current affairs examples. Third is topper copy, very very important.
श्रुति शर्मा मैम लास्ट ईयर स्कोर्ड आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट, तो मैंने उनकी टॉपर कॉपी रेफर करी, हाउ इज शी राइटिंग। तो गिने चुने कुछ ही कोट्स हैं जो हर जगह वो कंक्लूजन में डाल रही हैं। गांधी जी, सर्वोदय, अंत्योदय, उनके 2-3 पेपर देखे मैंने, सब में यही है। तो ये मैंने एक नोट डाउन कर लिया, कुछ बेसिक फ्रेमवर्क्स बना के कि दीज आर द कोट्स जो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली यूज हो रहे हैं। देन कुछ एग्जाम्पल्स है जो हर जगह यूज होते हैं। अब इसमें कीज की सिंपल एग्जाम्पल नहीं लिखना, उसके साथ कुछ आप ऐड कर दो कि माइकल फेल्प्स शोड एडवर्सिटी कोशेंट, तो एक एथिकल कीवर्ड, एक एग्जाम्पल लिंक हो गया। अभी जीएस का आंसर नहीं लग रहा, वरना माइकल फेल्प्स का तो हम कहीं और भी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। तो इसमें एथिकल कीवर्ड के साथ आंसर लिखना इज क्रूशियल। देन आई वुड से केस स्टडीज, इसमें इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू गिव द स्ट्रैटेजी जो इम्प्लीमेंटेबल हो। एकदम ही ऐसे नहीं कर देना कि हम तो मतलब आग से कूद जाएंगे और बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं। अब ये अप्रोच मेरे को मिली न्यूज़पेपर से। अगेन आई वुड से देयर वाज मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग एंड उसमें एक स्ट्रैटेजी थी बफर जोन क्रिएशन। काफ़ी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है कि बफर जोन क्रिएट कर दिया, बट ये हमें नोट्स में नहीं मिलेगी। एवरीबडी विल से कि मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल दैट, बट दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। अब ये मैंने ऐसे डिब्बे में बिल्कुल की, मेरे को पता है ये अलग स्ट्रैटेजी है, तो दिस आई मेंशन इन द केस स्टडीज़। और केस स्टडीज़ में भी जब हम देते हैं कि हमने ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया, उसमें मेरिट्स डीमेरिट्स लिखने होते हैं। तो मेरिट्स में आपको चीज़ जस्टिफाई करनी है तो आप पॉजिटिव लिखेंगे कि इट विल लीड टू दिस 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 दिस। एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा बना दीजिए दैट इट विल अवॉइड दिस, यानी अगर ये नहीं होता तो क्या होता, तो इट विल अवॉइड डैश, तो एक आपका एक्स्ट्रा पॉइंट बन गया। सो दिस अबाउट एथिक्स एंड या। अब जीएस में किसी को और डाउट यू कैन आस्क। नो? यस। हाउ मेनी क्वेश्चंस? मॉक टेस्ट per day I did not write, I made the frameworks. Framework means say in from the very beginning I practiced all the PYQs, so आप काउंट कर लीजिए। I mean I did not write, I mean पूरा लिख के नहीं, कुछ लिख लिए, कुछ का फ्रेमवर्क्स बना लिया अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ तो ऑप्शन को ज़्यादा टाइम देना है, तो जीएस के आंसर राइटिंग को कम टाइम होगा, आई मीन हाफ एन आवर ऐसा कुछ होगा, तो सिर्फ मैं फ्रेमवर्क बना लूँगी। जब मैं जीएस पढ़ रही हूँ तो मैं आंसर भी लिख लूँगी। सो मिक्स एंड मैच करके किया। प्री और मेंस के बीच में अराउंड 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और बाकी जो सिमुलेटर टेस्ट होते हैं, मतलब 3 days, वही जो ड्रिल रिपीट होने वाली है मेन एग्जाम में, दैट आई फॉलोड। आर वी डन विद जीएस की स्ट्रैटेजी? ओके, सो पानी ला दीजिए। देन अबाउट ऑप्शनल, किस चीज़ का ज्योग्राफी ऑप्शनल है? ओके ओके, सो पहली बात तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में 300 स्कोर प्लस आता है। इट इज़ वेरी अचीवेबल एंड आई होप कि आप मेरे से ज़्यादा ही स्कोर लाए। अब इसका जो की है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इट इज़ अ वेरी व्हाट डू यू कॉल इट, इंटरलिंकिंग इसमें बहुत अच्छे से रिक्वायर होती है, और फॉर ज्योग्राफी ऑप्शन स्टूडेंट स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर रीडिंग इज द की। सेकेंड, आई वुड से अंडरस्टैंडिंग द लेयर्स इन द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ डिफाइन पेनीप्लेन, ये क्वेश्चन है अभी 23 का, डिफाइन पेनीप्लेन और बाकी जियोमॉर्फिक साइकिल्स में हाउ पेनीप्लेन सिस्टम वर्क्स, बस 2 कॉम्पोनेंट है, बट हमारे आंसर में 2 कॉम्पोनेंट नहीं होंगे। पहला होगा डिफाइन पेनीप्लेन, ठीक है, डेफिनेशन देती, जिस भी स्कॉलर ने दिया ये बोल दिया। अब मेरा ये था कि कभी भी ऐसा कुछ आएगा ना तो आई मेक डायग्राम। काफ़ी मेरे को वो लगता है ये रेडिकल अप्रोच के लोग बोलते हैं डायग्राम ये हर जगह बना रहे हो, बट मेरे को काम किया ये, तो मैंने डेविस का डायग्राम बना दिया, नीचे लिख दिया डेविस का टेम्पोरल साइकिल। अब ये टॉपिक कहाँ से पूछा हुआ है? ये पूछा हुआ है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के साइक्लिकल स्कूल से, तो ये कीवर्ड मैंने डाल दिया कि मुझे पता है। देन मैंने आंसर किया जियोमॉर्फिक साइकिल्स। अब हर किसी को जियोमॉर्फिक साइकिल्स टोटल याद नहीं रहेंगे, 7 जियोमॉर्फिक साइकिल्स है। मैंने कभी पहले आंसर लिखा होगा तो मेरे से 1-2 साइकिल छूट गया होगा, तो मैंने एक निमोनिक बना लिया, फेक कैग, मतलब इसको लिटरली नहीं लेना है। फेक कैग मतलब फ्लूवियल एरिड कास्ट, एच प्लेन, कोस्टल, ग्लेशियल, पेरीग्लेशियल। अब अगर उस समय आप, अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मेरे पास केवल 5 मिनट बचे हैं और मेरे को अच्छा आंसर भी लिखना है, क्योंकि एक आंसर और मार्क्स यू नेवर नो कितने मार्जिन से आप छोड़ रहे हैं, बट मेरे को ये 7 पॉइंट्स याद थे, मैंने एक में सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिख दिया। फिर अब ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इफ़ यू सी बाहर से, मतलब डिफाइंड पेनीप्लेन हो गया है और कॉम्पोनेंट्स भी लिख दिया, तो आंसर तो हो ही गया है, आंसर नहीं हुआ है अभी। उसको क्रिटिक कर दो कि सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन भी कुछ होता है, फिर कि सिर्फ टेम्पोरल स्कूल नहीं है, स्ट्रक्चरल स्कूल भी है, ये कंक्लूड कर दिया। फिर हमेशा ऑप्शनल मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल स्पेसिफिक में कंक्लूजन में वी हैव टू मेंशन कीवर्ड। अब ये इससे आप ले सकते हैं डेनुटेशनल क्रोनोलॉजी, वो भी साइक्लिकल स्कूल का ही पार्ट है। तो अब एग्जामिनर अगर देख रहा है मेरा पेपर तो उसको पता है साइक्लिकल स्कूल लिख दिया, डेविस है, डायग्राम है, सारे साइकिल मेंशन कर दिए, एक भी नहीं छोड़ा।
अब ये तभी आया जब मेरे को फेक क्या याद था, वरना तो मैं भी सोचती कि यार कुछ मिस तो नहीं हो गया और टाइम्स अप, है ना। तो छोटे निमोनिक्स बनाने, फ्रेमवर्क्स बनाने इज वेरी क्रूशियल। थर्ड, मैंने स्ट्रक्चरल स्कूल भी बता दिया, सो आई नो स्ट्रक्चरल स्कूल। मैंने कंक्लूजन में एक कीवर्ड भी डाल दिया। सो मैं इंप्रेशन ऐसा दे रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही पीएचडी कर लिया मैंने सब्जेक्ट में, बट ऐसा भी कुछ नहीं है ना। आई एम जस्ट अ ग्रेजुएट और 3 साल ही पढ़ाई करी है। तो आई वुड से कि फ्रेमवर्क बनाने ऑप्शनल में, और जितने हो सके उतने सिलेबस के कीवर्ड्स डालने, स्पेशल एग्जाम्पल देने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पेपर 1 में दिस इज इंपॉर्टेंट। पेपर 2 में जो की है दैट इज मैपिंग और छोटे डायग्राम बनाने। इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ अर्बनाइजेशन, अगर ये जीएस का आंसर होता तो हम लिखते हैं दिल्ली एनसीआर अर्बनाइजेशन कॉन्क्रेटाइजेशन, जो भी पूछा हुआ है। इसमें हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दिल्ली एनसीआर अर्बनाइजेशन, गुड़गांव, नोएडा, सोनीपत, पानीपत। इसका एक मैप बना दिया, यानी थोड़ा सा लोकेशन स्पेसिफिक हो गए, so that the person knows कि अच्छा ठीक है मैप पढ़ा हुआ है, राइट। सो दिस इज द की इन पेपर 2। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप एग्जामिनर क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आपको पेपर ही जाएगा उनके पास चेक होने के लिए, हु नोज आपने कितनी पढ़ाई करी है, तो शो देम। बट द मेन कंपोनेंट शुड बी जो आंसर में पूछा हुआ है। ये सिर्फ ऐसा है कि फिलर्स आप इधर उधर ऐड कर दीजिए, बट जो मेन पूछा हुआ है उसको ज़्यादा स्पेस देनी है। बट ये भी आएंगे क्योंकि 300+ मार्क्स स्कोर करने के लिए आई थिंक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें यू हैव टू शो टू एग्जामिनर, राइट। और वो कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में ही होती है, थोड़ी थोड़ी स्पेस मिलती है हमें। सो दैट्स हाउ वी डू। एनी डाउट्स? आंसर राइटिंग अबाउट जीएस और ऑप्शनल? ओके। सो जीएस की आंसर राइटिंग मैंने ऐसे की थी कि एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, नोट्स बन गए। अब हाउ डू आई सी कि नोट्स सही बने कि नहीं, तो PYQs आंसर कर लिए। एंड देर इज अ बुक बाय आई थिंक शून्य जीएस की, देर इज वन बुक ऑफ PYQ के उन्होंने आंसर्स लिखे हुए हैं, वेरी वेल रिसर्च बुक। तो मैंने अपना आंसर, मैंने एक टॉपिक लिया से अर्बन फ्लड्स, स्पॉन सिटीज का कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ओके पहली चीज़ तो रिपीट हुआ है बहुत बार। मैंने अपना फ्रेमवर्क बना लिया कि अच्छा ये होता है। देन आई मैच्ड। अब आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन या तो आप आंसर जो अच्छे बने हुए उससे कीजिए या टॉपर कॉपी से कीजिए। आप खुद आंसर लिखेंगे, क्या पता आपका आंसर अच्छा है कि बुरा है, तो ऑलवेज रेफर टू टॉपर कॉपीज। मतलब ये गोल्ड माइन है, आपको इतने ज़्यादा पैटर्न्स मिलने लगेंगे, आप खुद ही अच्छा आंसर लिखने लगेंगे। और आंसर राइटिंग शुरू में फ्रेमवर्क्स बनाइए, लिखिए, गंदे आंसर आएंगे शुरू में, टाइम भी बहुत लगेगा। ये सब प्रोसेस है, आपको ये गुजरना ही पड़ेगा इस प्रोसेस से, जब आप 3 घंटे में बहुत ही सॉलिड आंसर लिख देंगे। और टॉपर कॉपीज को देख के भी ऐसे वो नहीं होना है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ कि इतने ये तो मैं कभी नहीं लिख सकती, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आंसर राइटिंग में, आई वुड से। और धीरे धीरे वो बिल्डअप होता है, और प्री और मेंस के बीच में आंसर राइटिंग बहुत इंटेंस नहीं करनी होती है, राइट। आई मीन आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, या एनीवन एल्स? डन। नेक्स्ट आते हैं इंटरव्यू स्टेज पे। सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर कि इंटरव्यू के लिए हाउ डू यू प्रिपेयर, बिकॉज माई स्कोर्स आर नॉट दैट ग्रेट। बट वॉट आई फिगर्ड आउट इज कि इंटरव्यू रिक्वायर्स यू टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट रिक्वायर्स प्रिपरेशन। आई मीन इट कैन नॉट बी की पर्सनैलिटी शो करें तो चलो पर्सनैलिटी, दैट्स फाइन, बट पर्सनैलिटी का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है नॉलेज। एंड इफ यू डू नॉट हैव नॉलेज, हाउ विल यू शोकेस योर पर्सनैलिटी? मैं भी आपको इतना सारा ज्ञान दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, वरना हाउ व्हाई विल यू लिसन टू मी, राइट। सो नॉलेज का आपको यू हैव टू रीड करंट अफेयर्स को एक डिफरेंट लेंस से, थोड़ा एनालिसिस बेस्ड पे। देन डैफ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और यू शुड बी इन ईज वाइल गिविंग इंटरव्यू। मेंस में जितना हम बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करते हैं अपने फोकस को, वही इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको लिंक करिए एंड यू नो मेक द कॉन्वर्जेशन फन। एंड या दैट्स अबाउट द इंटरव्यू स्टेज। एंड रिजल्ट्स आई वुड से कि मेरा इंटरव्यू पहले दिन हो गया था 2 जन को। सो मेरे पास अभी मैं प्रिपेयर ही करी थी प्रीलिम्स के लिए, मैंने रिवाइज भी कर दिया, मैंने टेस्ट भी दे दिए। सो इट इज़ क्वाइट एन अनसर्टन जर्नी आई वुड से। बट वन की मैसेज आई वुड से इज दैट यूपीएससी इज शॉर्टकट टू लाइफ। जो लोग बहुत बूढ़े होकर सीखते हैं लाइफ के बारे में, वो हम यहाँ सीख जाएंगे कि हमें वी हैव टू नो योर सेल्फ। हमें कितनी ज्ञानी बात लग रही है कि अब अभी हाउ आई एम सेइंग कि नो योर सेल्फ, और यू कैन सी इन समबडीज आइज कि वेदर दे हैव अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। सो आपको जो भी लर्निंग्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, यू विल अंडरस्टैंड देम इन योर प्रिपरेशन फेज। सो आई मीन इट इज़ अ वेरी interesting journey, quite tough journey, but you'll be grateful that you've taken this journey, and be proud of that you're making efforts. Not everybody has supportive parents, not everybody can afford the studies that you are doing, and I would say be grateful that every day you are got to study the things,
एंड आई थिंक दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज ग्रैटिट्यूड एंड सेकेंडली इज फोकस रहना. Gratitude is to remove the anxiety from us, right? And then we have to do the study. So at the end of the day, it is pen and paper examination. जो रील्स एंड ऑल दैट है, व्हाट विल डू इन सर्विस, आई मीन एक समय के लिए ठीक है, बट रोज आपको पढ़ाई करनी है. दिस एग्जाम इज अबाउट स्टडीज एंड इट इज छोटे छोटे बेसिक कंपोनेंट्स को सही करना. कुछ एकदम यूनिक हटके भी नहीं करना है. वो हटके जब होगा जब आपका यूनिकली पर्सपेक्टिव अपना होगा, राइट? जैसे मैंने बताया मेरी कुछ स्ट्रैटेजी थी तो यूनिकली मी थी, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि बेसिक सोर्स हटा के कुछ पता ही नहीं क्या पढ़ लिया. तो सिंपल चीज़ें हैं, बट सिंपल इज नॉट ऑलवेज ईजी. बोरिंग भी होगी. ईजी इसलिए ईजी नहीं है क्योंकि बोरिंग हो गई ना तो फिर हम कुछ कुछ और ढूंढेंगे बहाने. बट अगर हम ट्रूथफुल है कि हम ये रिवाइज क्यों नहीं करेंगे, रिवीजन बहुत बोरिंग है और हमें तो पता चल गया है, तो हर चीज़ के कोर में ना कोई मेंटल कंपोनेंट है. हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं, हमने पढ़ लिया, हम ये टेस्ट दे देंगे. टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो आप? अगेन बी क्यूरियस. बिकॉज आई एम fearful, राइट इट डाउन, आई एम fearful टू गिव द टेस्ट क्योंकि कम मार्क्स आएंगे. सो कोर में क्या है? करेज की कमी है. हमेशा हर चीज़ के कोर में देयर विल बी अ मेंटल कंपोनेंट. And if that is sorted, the journey requires you to have tenacity, and that can be easily done if your this is clear. Okay, so one question is about revision. I would say revision boring है तो interesting बनाई जा सकती है. So for that, पहली बारी अगर मैंने रिवाइज किया, so I'll use yellow highlighter कि this is important, this is not. सेकेंड टाइम रिवाइज किया, हाईलाइटिंग तो ठीक है, कुछ कंपोनेंट में भूल गई हाईलाइटिंग के, तो उसको मैंने रेड से वो कर दिया सर्कल कि ये मेरे को याद नहीं हो रही है. थर्ड टाइम अब मैं करूँगी तो येलो वाले में फटाफट पढ़ लूँगी क्योंकि वो तो पता ही है. अब रेड वाले पे ज़्यादा फोकस देना है, तो टाइम मेरा नैरो हो गया. थर्ड रिविजन मेरे को याद था, ठीक है रेड वाला भी याद था, येलो भी याद था, बट ये कुछ चीज़ मैं भूल गई तो उसको एकदम ग्रीन से हाईलाइट कर लिया. तो हर रिविजन पे कलर चेंज हो गया. अब दिखने में आपको लगेगा कि पता नहीं इतना कलरफुल क्या है, बट मुझे पता है कि मेरे को ग्रीन पे ज़्यादा फोकस करना है. सो अगर कल मेरा एग्जाम है तो मेरे को ग्रीन वाली चीज़ें पढ़ के जानी है. येलो और रेड आई कैन मैनेज की, वो गलत नहीं हुई है पहले. तो दैट्स हाउ यू डू रिविजन एंड मेक इट इंटरेस्टिंग. सेकंड आई वुड से कि रोज़ रिविजन करना. और हम वो क्यों नहीं करें? क्योंकि हम बोर हो रहे हैं. हम बोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें मतलब ये नॉट ट्रू टू द प्रोसेस. तो अगर आपने आज एक चीज़ कर लिया उसको फटाफट कल रिवाइज कर दो, फिर नेक्स्ट कुछ एक वीक में कुछ ऐसा स्लॉट होगा जिसमें हम रिवाइज करेंगे, और ये एकदम इमीडिएटली आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा. बट आप जब कुछ महीने गुजर जाएंगे तो आपको लगेगा कि छोटा छोटा करके इतना ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाता है. सो बी ट्रूथफुल. और हर चीज़ का जब आपको डाउट लगे ना कि कहीं आप डाइग्रेस हो रहे हैं, सो ऑलवेज क्वेश्चन कि क्यों 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 नहीं कर पा रहे हम. क्योंकि रिविजन बोरिंग है, हमें बोरिंग चीज़ों में फ़न नहीं आ रहा है, तो फ़न बनाते हैं. हाउ डू यू मेक इट फन? तो कलरफुल, या कुछ लोग वीडियो कंटेंट भी रेफर करते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट हमेशा क्वेश्चन वाई यू आर नॉट डूइंग समथिंग. बिल्कुल. मेरी क्लासेस काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन हो गई थी. कोविड ईयर था मेरा लास्ट ईयर, तो इट वॉज मैनेजेबल, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई यू सेइंग कि कॉलेज ऑल्सो रिक्वायर्स सम academic rigor is there. So I would say that don't be too harsh on yourself, and this exam requires कि अगर आप 1 year dedicated अगर आप प्रिपेयर करें, so आप एकदम से जंप मत कीजिए. यू नो कि आपने कहाँ स्टैंड किया है. आफ्टर द कोचिंग यू नो कि अच्छा मेरे मेंस के नोट्स आर रेडी, इज दिस नॉट रेडी. सो आई वुड से दैट अभी के लिए enjoy कॉलेज लाइफ ऑल्सो, बिकॉज इट विल नॉट कम अगेन, राइट? और कॉलेज लाइफ में जो पर्सनैलिटी बनती है हमारी, अगेन द मेंटल कॉम्पोनेंट इज बीइंग बिल्ट इन द कॉलेज. सो अगर आप कोई से इवेंट कंडक्ट करा रहे हैं, फेस्ट होते हैं कॉलेज में, वी कंडक्ट डिपार्टमेंट फेस्ट एंड ऑल दैट. अब कोई हवाई और कुछ पेड़ उड़ गया, कुछ बैनर, तो फटाफट आपको मैनेज करना है. सो इट रिक्वायर्स कि आप एकदम क्विक लर्न कर रहे हैं और आप कुछ भी क्राइसिस हैंडल कर रहे हैं. सो अब अभी आपको लगेगा नहीं कि ऐसे करने में हाउ विल इट हेल्प इन माय जर्नी, बट कभी ना कभी आपकी प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप जुगाड़ रहे कुछ लगाइए कि अच्छा ये हो सकता है. तो इसका कॉम्पोनेंट आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे कि जो आपने कॉलेज में किया वहाँ से आया है, बट देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कॉलेज लाइफ. एंड अभी जितना हो सके यू ट्राई टू मैनेज. और वीकेंड्स पे नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज हो सकते हैं. डेली तो इट डिपेंड्स, मतलब कितनी क्लासेज हैं क्या है, बट वीकेंड्स पे यू कैन गिव डेडिकेटेड आवर्स. जैसे कि मैं अभी बीटेक कर रही हूँ, तो मेरा तो बिल्कुल ही जो यूपीएससी का सिलेबस है बिल्कुल ही मेरा कंप्यूटर साइंस से जुड़ा है. तो मेरे को सीरियल वाइज आप भी बता सकते हो मुझे कौन से सब्जेक्ट से पहले जाना चाहिए? उसकी वजह से पॉलिटी मैंने कंप्लीट करी है, मैं भी इकोनॉमिक्स में हूँ. देन क्या मैं सही प्रोसेस में हूँ? कैसे और मुझे क्या करना चाहिए? कौन से सब्जेक्ट पे जाना आई वुड से जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेमोरी नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए,
डिमांड सप्लाई का, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार क्लियर हो गया तो आप कभी भूलोगे नहीं. बट अगर हिस्ट्री में दिस प्लेस में दिस रिवर दिस प्लेस, ये अब आप अभी करोगे तो फिर भूल जाओगे आप. सो आई वुड से कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप रख लीजिए एंड थोड़ा आइडिया कि अच्छा दिस पार्ट में मेरे को बाद में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. तो हिस्ट्री जब होगी जब एग्जाम पास आएगा, बट फिर यू बी माइंडफुल कि मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है. अब हमें ये भी डाउट, मेरे को मुझे जो प्रॉब्लम है, जैसे मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो जैसे करंट से कनेक्ट कर लेती हूँ, तो मैं करंट में देखती हूँ कि गूगल पे हो ही जाता है, तो मैं हाँ ये भी इम्पोर्टेंट होगा, ये भी इम्पोर्टेंट होगा, इसको भी पढ़ो. शुरू में बिल्कुल ऐसा लगता है कि सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट वो होए ना, क्या प्रॉब्लम है. मेरे पहले करंट के नोट्स में रजिस्टर बनाती थी कि पूरा टॉपिक लिख के ये वो, बट वो मैनेज नहीं हुआ, एंड में पूरी रजिस्टर भर गया. तो मैंने देखा कि नहीं हो रहा है मेरे से ये, आई विल मेक डिजिटल करंट अफेयर के नोट्स, और ज़्यादा बल्कि भी नहीं. फिर एक एक लाइन के आने लगे, बट शुरू में बल्कि नोट्स भी बने, फिर वो वन लाइनर आए, फिर वो बिल्कुल फ्रेमवर्क पे सेट हो गए. तो ये एक प्रोसेस है, यू हैव टू गो थ्रू. एंड आई मीन नो वरीज, पहले टाइम लगेगा, बल्कि होंगे, बट यू आर इन कॉलेज, यू हैव टाइम, आराम से करो, नो टेंशन. What was your approach of an mock test analysis of everything? प्रीलिम्स और मेन स्पेसिफिक, बिल्कुल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 आवर्स आप देते हैं और 3-4 आवर्स का मेरा एनालिसिस रहता था शुरू में, बाद में थोड़ा टाइम कम हुआ. बट एनालिसिस का भी एक मेथड है इसमें. फर्स्ट इज कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए, दैट इज़ द बेसिक. देन क्यों गलत हुए, मेक अ मैट्रिक्स. मेरा एक पहला मैट्रिक्स होता था जो आते हुए क्वेश्चन गलत हुए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जो पता ही नहीं था. तो अब नहीं पता ना हमें, तो इसमें व्हाट कैन वी डू, यानी वी हैव टू रीड मोर ऑन दिस. थर्ड की कुछ सिली मिस्टेक कर दी, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा ढंग से, या मैच द फॉलोइंग में ए का बी कर दिया कुछ भी. तो मेरे को आफ्टर 5-6 टेस्ट मेरे को एक पैटर्न पता चल जाएगा कि अच्छा ये मेरे गलत हो रहे हैं. पॉलिटी में जो नहीं आते हुए गलत हो रहे हैं, यानी कि मेरे को पॉलिटी का थोड़ा और कुछ रेफर करना है. से लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें न्यू एडिशंस आए हैं, राइट, कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड हुए हैं, तो उसमें से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, तो मैंने वो पढ़ लिया. नेक्स्ट में मेरे को इन्वायरमेंट में पता चला कि मैंने मैपिंग मेरी गलत हो रही है, नेशनल पार्क वाली आते हुए गलत हो रहे हैं, तो दोबारा रिवाइज कर लिया. तो इसमें भी कुछ मेथड ढूंढना इस मैडनेस में, दैट इज द की, राइट. ये पेपर में जैसे कई बार आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन आया था, जैसे फर्स्ट पार्ट में, जैसे कि पहले बास्केट ऑफ एयरपोर्टोग्राफी आता है, प्लस पीयू का निशान. तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप उसका आपका अप्रोच क्या है? जैसे आउट ऑफ द ब्लू आपको कोई आइडिया नहीं, तो आप उस पर क्या अपना कैसे वर्क करते हैं? पहले आई वुड से कि मेरे ईयर में आई थिंक ओशन रैंचिंग और एक्वा काउबॉय से कुछ क्वेश्चन था. अब इससे अगर ये जैसे स्पीलियोथेम है, अब पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, तो उसमें तो नथिंग वी कैन डू. अब इसमें कुछ समझ आ रहा है, एक्वा काउबॉयज और ओशन रैंचिंग फील्ड में भी होती है, तो कुछ सीग्रास होगा. और सीग्रास हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, प्रीलिम्स में गल्फ ऑफ पन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में सी काउ डुगोंग. तो मैंने केस स्टडी बना दी, मैप बना दिया. इफ समबडी इज चेकिंग उसको लगेगा कि तो सब कुछ पढ़ के ही आई हुई है, बट मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था. सिर्फ कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग से मैंने प्रीलिम्स की नॉलेज इधर लगा दी और केस स्टडी बना दी. केस स्टडी हम जब बनाते हैं व्हेन यू आर श्योर, इसमें आप दिखाओ मतलब कि आई नो. सो आई थिंक थोड़ा कॉमन सेंस लगे तो आप यू कैन डू. और बाकी नहीं लग रहा है तो स्पीलियोथेम्स, तो आई थिंक इट इज़ फ्रॉम बेसिक सोर्स, दैट इज सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी. सो आई थिंक बेसिक सोर्स से अगर कुछ की टर्म आ गया दैट यू शुड बी एबल टू आंसर. और कैसे चेक करें कि आप सही पढ़ रहे हो, मतलब टेस्ट जब लगातार टेस्ट, मतलब जैसे आपने तो स्टार्टिंग है पढ़ाई, तो अभी कुछ टॉपिक पढ़ा, तो कैसे चेक करें कि हमने सही चीज़ पढ़ी है, यूपीएससी के रिलेटेड चीज़ पढ़ी है कुछ. पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं तो बेटर है. अब नेक्स्ट लेवल मॉक टेस्ट सॉल्व हो रहे हैं तो ठीक है, यानी ये टॉपिक हमारा अच्छे से प्रिपेयर हो गया. अब करंट जो डेवलपमेंट आएगी जो हम देंगे तो अब देंगे. नेक्स्ट मेंस में हम सही आंसर लिख रहे हैं कि नहीं, हमें लगेगा हम बहुत ही मस्त आंसर लिख रहे हैं. सो कंपेयर टू टॉपर कॉपीज, हाउ आर दे राइटिंग. इसमें भी व्हाट रिक्वायर्स कि आप उनको उनके आंसर को आप वो कर दीजिए कवर, सिर्फ क्वेश्चन देखिए और फिर अपना लिखिए. इट ऑल्सो रिक्वायर्स कि आप थोड़े से करेजियस हो, वरना पीपल की टॉपर कॉपीज देख रहे हैं कि अच्छा ठीक है ऐसा आंसर लिखना है, ऐसे तो करना ही नहीं है. हमें उसको छुपा देना है, खुद लिखना है, ताकि हमें अपनी वीकनेस पता चले कि हम वी आर नॉट गुड इनफ टू राइट द आंसर. फिर अगेन करेज कि आप अभी यू आर नॉट देयर बट यू कैन बी देयर ना, उन्होंने लिखा है तो वी कैन ऑल्सो बी देयर. तो हमेशा टॉपर कॉपीज और पीवाईक्यू से अपना प्रेपरेशन लाइन रखिए. What were the sources and approach for economy? इकोनॉमी ओके, सो आई हैड इकोनॉमिक्स इन क्लास 11th and 12th, तो मेरे को इतना कंसेप्ट में इतना इशू नहीं हुआ. सो आई थिंक ऋषभ रेवर सर का चैनल है, उसमें ही हैज़ कंपाइल्ड कुछ आई थिंक 100 पेज का डॉक्यूमेंट है.
दैट आई रेफर क्योंकि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग थे. इफ योर बेसिक इज नॉट स्ट्रॉन्ग देन आई थिंक यू नीड टू रेफर टू बुक्स एंड अदर जो मृणाल सर के नोट्स देर आर इन द मार्केट्स. बट आई रेफर्ड उनका सिर्फ विन सीरीज. सो नो योर सेल्फ अगेन, इकोनॉमी आपका कितना कंसेप्ट क्लैरिटी एंड ऑल दैट. या सो एग्जाम हॉल के लिए आई हैड प्लान ऑलरेडी. जो भी एडवर्सिटी आ जाए, देखो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज इतने दिए हैं तो हमें पता है कि क्वेश्चन इधर उधर भी हो सकते हैं मेन एग्जाम में, एंड वी हैव टू बी मेंटली रेडी कि कुछ भी पूछ सकते हैं. बट वी आर हेयर, हम ही से तो लोग सिलेक्ट होने हैं ना. तो पहले ये थोड़ा सा करेज होना कि हमने किए मेहनत, एंड आई विल बी सिलेक्टेड. प्रीलिम्स से मेरा था कि जैसे इस रूम से मेरा तो हो ही रहा है सिलेक्शन. इस माइंडसेट से, आई मीन माइंडसेट मैटर्स. आई मीन इफ यू कैन बी रियली व्हाट डू यू कॉल इट, कॉन्फिडेंट इन योर अप्रोच, दैट हेल्प. बट अगेन क्वेश्चन देख के एंग्जाइटी इधर उधर होती है. तो मैंने ये एनालाइज किया था कि जब मैं पेपर जगल कर रही हूँ ना, तब मेरी एंग्जाइटी बढ़ रही है. काफ़ी कॉन्ट्ररी भी हुआ है. पीपल से कि इफ़ यू फ्लिप पेजेस आपकी एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाएगी. मेरी बढ़ती थी कि फ्लिप ही क्यों कर रही हूँ मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलती थी. और मेरा ये हैक या कुछ भी सेल्फ अवेयरनेस से आया कि लास्ट के टाइम में जब सेकेंड आइटरेशन कर रही हूँ मैं, तो मेरे को क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं. मतलब इफ़ यू सी कि 4 क्वेश्चन होते हैं एक पेज पे, फिर हिंदी ट्रांसलेशन होता है. तो एक हम अगर पेज पलट रहे हैं तो हम 4 ही क्वेश्चन देख रहे हैं, हो सकता है चारों देखे हुए हो. तो एंड में आप लिख लीजिए. फर्स्ट आइटरेशन में सी आई टेल माई अप्रोच कि हम चले शुरू से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन. 25 क्वेश्चन हो गए, आप OMR फिल कर ली. और वो क्वेश्चन जो हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं या बिल्कुल ही नहीं पता, मतलब जो सॉल्व नहीं करे हैं, उनको एंड में क्वेश्चन नंबर लिख लिया, से 8, 17, 22. बस. अब 25 पेजेस में हमें केवल 3 क्वेश्चन देखने हैं. तो हम जो जगलिंग करते हैं, और जगलिंग करने में कितना, मतलब इफ़ यू सी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, इतना एंक्शियस लग रहा है कि हम जगल कर रहे हैं. ये मेरे से नहीं होता था, तो मैंने लास्ट में लिख लिए. तो अब क्या होगा कि 30 से 40 एंड में, आफ्टर 25 का ब्रेक लेकर अगर आप ये सब एक्सरसाइज करेंगे, तो 1 आवर 15 मिनट्स के अराउंड मेरा हो जाता था फर्स्ट आइटरेशन. अब मुझे बस लास्ट में क्वेश्चन देखने हैं. ओके 8, 11, 17, 8, 11, 17 पे जाए. हम ऐसे जगल नहीं कर रहे हैं. वॉट एम आई शोइंग कि मैं एग्जाम हॉल में एकदम काम हूँ कि मैं ऐसे देख रही हूँ, और साइड में कोई बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है, तो मेरे को अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इसको पता ही नहीं. राइट, अगेन फूलिंग योर सेल्फ इन अ वे, बट इट हेल्प. तो आई थिंक दैट्स द की. या एनीवन एल्स? ज्योग्राफी ऑप्शन क्लियर किया था, आपका नोट्स बना दिया आपने स्कूल से. जैसे मेरे पास क्लास नोट्स है या फिर कुछ पीडीएफ्स हैं उसके, तो कैसे अपने नोट्स उससे बनाए या फिर वही करते हैं? नोट्स के लिए बेसिक बुक्स, कोचिंग नोट्स और टॉपर्स नोट्स. एंड आई शेयर माई डिटेल जो मैंने क्या किया एक ड्राइव लिंक पे. सो आई थिंक दैट विल बी यूजफुल, बिकॉज अभी काफ़ी लोगों का नहीं भी ऑप्शनल, तो आई थिंक टाइम वुड नॉट बी देयर फॉर टू डिस्कस. या और कोई डाउट? अच्छा, क्या हो जाए? तो होने दो डर. डर देखो, डर का भी डर का भी ग्राफ है ऐसे. अगर कम डर है ना तो भी पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि हम तो कर ही लेंगे. और अगर डर बहुत ज़्यादा है तो हम कैसे कर लेंगे. तो बीच का जो फेज होता है ना, थोड़ा डर रहे, ताकि हम, मतलब वी आर फोकस्ड कि इट इज़ अ एग्जामिनेशन, टफ एग्जामिनेशन, बट वी आर हेयर टू सॉल्व इट. अब आपने बोला कि क्वेश्चन गंदे लिख रहे हैं, इसका डर हो रहा है. यही तो स्टेज है, क्वेश्चन गंदे ही तो लिखने हैं. अगर आपको कह रहे कि गंदे ही क्वेश्चन लिखे जाएंगे, तो ठीक है, फटाफट में स्टेज पार कर लो ताकि थोड़े एवरेज आए. अब तो जब आप गंदे में आंसर लिखेंगे ना, तो आप ये बोले कि ठीक है ना, ये स्टेज तो क्रॉस हो रही है गंदे आंसर वाली, आगे एवरेज आंसर आने वाला है. अब एवरेज लिख लिए, अब ठीक है, स्टेज क्रॉस हो गई. आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ समय बाद आप अच्छे और टॉपर बन जाएंगे. तो थोड़ा सा अगर आप अपने माइंड को यू कैन कीप इट दैट वे, दैट विल बी यूजफुल. बिकॉज सी इनिशियली जर्नी ऐसी है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा जब बहुत सारी चीज़ें क्यूमुलेट होने लगेगी, इंटरलिंक होगा, तब वो शूटअप करेगा. बट जब तक वो शूटअप नहीं कर रहा है, तब तक आप अपने माइंड को आई मीन ट्रस्ट द प्रोसेस कि दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज. और एक समय बाद इधर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, आपने पेपर दिया, इंटरव्यू और टॉपर. ठीक है. यस, आर वी डन?
मॉक्स देखिए हमारा हम थोड़े जिटरी होते हैं आंसर देने में, क्योंकि मेंस में हम बिल्कुल ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हमें पढ़ना ही है, हमें किससे बात नहीं करनी, बट इंटरव्यू में तो बात ही करनी है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उस फेज में आने के लिए कि हम अपने थॉट्स को वर्बली एक्सप्रेस कर पाए। अगर बेसिक कोई आप आंसर पूछेंगे मैं उसको लिख दूंगी आंसर, बट बोलने में मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था। सो आई थिंक मॉक हेल्प्स, ताकि आपकी जो माइंड है वो थॉट्स ला पाए वर्बली, कि आप बोल रहे हैं और फिर सोच रहे हैं, बोल रहे हैं फिर सोच रहे हैं साइमल्टेनियसली। ये मॉक टेस्ट से हो जाता है। और कुछ क्वेश्चंस मतलब रिपीट भी हो जाते हैं। आई मीन इट डिपेंड्स ऑन लक, कि अगर उन्होंने वही पूछ लिया और आपसे मतलब वही क्वेश्चन पूछा, तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि रिपीट हो रहा है कि नहीं, बट इट डज हेल्प। जैसे मॉक टेस्ट हेल्प करते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, वैसे ही मॉक टेस्ट है। या आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। So thank you everybody, and all the best. And again my message would be know yourself and be courageous enough and be proud कि आप ये journey ले रहे हैं, और इसको बिल्कुल what do you call it, बिल्कुल give it your soul कि this is my journey। अगर ये mindset रहेगा तो कुछ भी issue आएगा हम solve कर ही लेंगे, right? Okay, thank you।